ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਣੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵਿਗੜਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਨਾ ਨਾ, जितनी ताकत ज्यादा होए उतना ही जबान पे आ जाता है ना, नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है, ताकत है, उस हिसाब नाल ही वो ना करता है। ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे काम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच ते भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हाँ कहना ही भुल गए। हाँ कहण विच इनू अपना छोटापन प्रतीत होता है। जायज गल भी नौकर ने कह दी है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, तां भी मालिक कहता है ना। नौकर दी हां च हां मिला दईए ना। अहंकारी ना करता है, सबनों ना करता है, और जिथे तक इसकी सतह है उथे तक ना करता है, और जितना ना ना करी जाता है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृणंत अनिक माया विस्तीर ने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसदे दुश्मन ही बढ़दे ने। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बानिशां के कामे दिल बबारा रद, निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जितों खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनू अज ही जड़ों पुट दे। सिवाए दुखां दे सोल तो इस बूटे नू होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नू मित्र बना लेंदा है। सबको मीत हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नू उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नू, जड़ चेतन सबनू अपना मित्र बना लिया। जिंदगी ते बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नू मित्र बनाया। आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसदी है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जद उस एक नू सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जद रिश्ता जुड़दा है, तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है। अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है। जीवन धन हो जाता है। कहंदे मित्रां दे विच जीवना स्वर्ग दे विच जीवना है, दुश्मनां दे विच जीना नरक दे विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने हो जो कहंदे गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चवो ने जिन्हां ने शैतान नू भी मित्र बना लिया है, दुष्टां नू भी मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको मीत हम आपन कीना। पर ये युगत
ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਜੇ ਅਸਥੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਰਾਗੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਟਿਆ ਬਣਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਹੰਕਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਾ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਇਹ ਯੋਗੀ, ਇਹ ਸੰਤ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਧੁੰਮ ਪਈ। ਬਹੁਤ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਜਮੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਪੁਸ਼ਾਕ ਚੋਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ? ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਿਆਗੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ 10 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਇਸ ਸੰਤ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਤਕਾਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਾਇਆ। ਰਾਤ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੋਈ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਮੈਂ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖੇ ਇਹ ਪਾ ਲਓ, ਕਸਬੇ ਦੇ ਚਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕੁਝ ਬੇਨਿਆਜ਼, ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਧੂ ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਸਾਧੂ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਮਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ, ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹ ਚੋਲਾ, ਕੀਮਤੀ ਚੋਲਾ। ਜੈਸੇ ਦੋਵੇਂ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਸ ਚੋਲੇ ਤੇ ਔਰ ਚੋਲਾ ਜਿਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਉਸ ਤੇ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਦ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਗਾਹਾਂ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਚੋਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗਏ। आओ भगत होई, सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालियां ने सुभावक पूछया उस बैरागी साधु तो, ये जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनू वेख रहे ने। सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलकदी है, निर्माणता बिखरदी है, रहस बिस्माद अखां दे विच है। तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने। पुछदे ने, संत जी ये नाल फड़े कौन आए ने? दुखत होके कहंदा है, मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन दे दोस्त ने, साधु ने, साधना करते ने, बड़े ज्ञानी ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर, जब उस घर तो रुखसत होए, उस मेहमान साधु ने कहा, मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे। कोई इस तरह तारुफ कराई दे? खैर, माफी मंगण लग पिया। कहने लगा, नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ। दूसरे घर गए, दूसरे घर वालियां दी भी निगाह इस साधु ते, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे ते शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वाले ने भी यही पूछा, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन दे दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने। रह गई इस चोले की गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे विच ही वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर, उस घर तो ज्यों निकले, ये बैरागी साधु फिर माफी मंगदा है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिए सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखां नूं प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नूं देख रहे हैं। सुभावक पुछ लिया, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये किहड़े संत ने? तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने। पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी, मैं इस दी गल नहीं करनी।
ना गल करके भी कर गया। जद उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता। आखिया, 3 दफा तू नंगा कीता है, ऐले अपना चोला, हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना। 3 दफा तू उतरवाया है, 3 दफा तू नगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सन्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र नूं छुपाएगा। मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनों भी हंकारी छुपाण की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे आपना ते नर बुरियारी। ये बड़े बुरे पुरुष आउंदे ने हंकारी, गुरु नूं भी छुपांदे ने। क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? तो ये मित्र नूं छुपांदे ने, पुत्र नूं छुपांदे ने अगर गुणवान है। मां बाप नूं पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नूं ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश यह भी आउंदी है, रब नूं भी पिछे सुटीए, परमात्मा नूं भी पिछे सुटीए। और नाकिश ने पिछे सुटण की कोशिश की सी। नमरूद ने कह दिता सी, कौन हुंदा है खुदा? मैं खुद खुदा। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसी नूं भी नहीं मन सकता। अहंकार जीवदा है, मैं आश्रित, तू ते बिल्कुल भुल जाता है।